So dear students, last time I told you about Sturm Liouville boundary value problem. ये स्टर्म नहीं है, स्टर्म है, इसको STURM लिखना, स्टर्म. Although it is not that important, but still. So today we will take up a problem on Sturm Liouville. In fact, we will take Sturm Liouville problem today and we will try to find a non-trivial solution of that. So find a non-trivial solution of Sturm Liouville problem This is your Sturm Liouville problem. Solution लिखिए बच्चे. 3 cases can arise. पहला केस क्या है? When lambda is equal to 0. Lambda is equal to 0. 3 केसेस. जब लैम्डा ग्रेटर, एक लैम्डा इक्वल टू 0 वाला केस लेते हैं हम, एक लैम्डा लेस देन 0 एंड एक लैम्डा ग्रेटर देन 0. सो वी actually look for the whole real number system, that how this differential equation will behave in the different part of real number system. So in the different parts of real number system we will have a look. First of all, we will have a look at lambda equal to 0. So if lambda is equal to 0, then first becomes d square y by dx square equal to 0. Therefore जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू c1 प्लस c2x. यही होगा बच्चे, c1 प्लस c2x. क्योंकि आप दो बार इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे. एक बार करोगे तो क्या आएगा, c1 आएगा. तो c बार करोगे तो मतलब कुल मिला के आपके पास दो बार करना है ना इसको इंटीग्रेट, तो दो बार इंटीग्रेट करके आएगा. What I am trying to say is that इक्वल टू 0 है. इंटीग्रेट करो, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1. दूसरी बार इंटीग्रेट करोगे y इज इक्वल टू प्लस c2. ठीक है. अब गिवन कंडीशंस क्या है? y at 0 is equal to 0. So this implies this is y at x, suppose. So this is 0 is equal to c1 plus c2 into 0. This implies c1 is equal to 0 and y at pi is equal to 0. So this implies what? Since c1 is 0, so c2 into pi, this was already 0, and at pi this is again 0. This is y at pi which is equal to 0. So pi into c2 is equal to 0, but pi cannot be equal to 0, so that means c2 has to be equal to 0. So both c1 and c2 is equal to 0. Therefore
In the parameter lambda equal to 0, the only solution is a trivial solution. This is a trivial solution. Therefore, for lambda equal to 0 parameter, the only solution is which? Yx equal to 0, which is a trivial solution, which is a, वो तो होता ही होता है, किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता ही होता है, दैट इज सुपरफ्लोज भी कहते हैं उसको, ट्रिवियल भी कहते हैं, वो हमेशा होता है, विच इज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है. बट वी हैव टू लुक फॉर द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर now greater than 0, firstly less than 0, and then we will look for greater than 0. So let us come to the case number 2. Coming to the case number 2, when lambda is greater than 0, sorry, less than 0, in this case we can write हम लैम्डा को माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अल्फा स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. सो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव. सो इफ लैम्डा इज लेस देन 0, देन वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर. फाइन, because alpha square is always positive and positive into negative is negative. Since lambda is less than 0, so we can write lambda is equal to minus alpha square, because alpha square is always positive, so positive into negative is negative. So we can write that. Therefore auxiliary equation क्या हो जाएगी? m square माइनस क्या था आपके पास? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई था ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा वाई की जगह अल्फा स्क्वायर, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन में वाई नहीं लिखते, एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से m प्लस अल्फा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, m माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. सो m की क्या आएंगी वैल्यू? अल्फा माइनस अल्फा. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? Therefore the general solution of first for lambda less than 0 will be given by yx is equal to, बोलो, c1 e की पावर अल्फा x, c2 e की पावर minus alpha x. Let me call this as equation number 4. अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कीजिए, as y of 0 is equal to 0. So this means what? 0 is equal to c1 plus c2. Let this be equation number 5. And y at pi is equal to 0 implies what? 0 is equal to c1 e की पावर अल्फा पाई प्लस c2 e की पावर माइनस अल्फा पाई. So this means, let this be equation number 6. This implies, now see from fifth you can see one thing for sure, that c2 is equal to minus c1. तो आप लिख सकते हैं c1 e की पावर अल्फा पाई माइनस c1 की पावर माइनस अल्फा पाई. वाई? फ्रॉम 5 c2 is equal to minus c1, because c1 plus c2 is equal to 0. So from here you have
C1 को कॉमन ले लो, e की पावर अल्फा पाई माइनस e की पावर माइनस अल्फा पाई, दिस इज इक्वल टू 0. फाइन. ओके, what is this e की पावर अल्फा पाई माइनस e की पावर माइनस अल्फा पाई? e की पावर अल्फा पाई माइनस e की पावर माइनस अल्फा पाई, दिस इज माइनस 1 अपॉन e की पावर अल्फा पाई. दिस इज e की पावर 2 अल्फा पाई माइनस 1 अपॉन e की पावर अल्फा पाई. ओके, सो alpha is greater than 0. Alpha is greater than 0. By the choice, whether alpha is greater than 0 or less than 0, but it is not equal to 0. It is not equal to 0 because if it will be equal to 0, then lambda will become equal to 0, which is contradictory to the lambda less than 0. अब ये 0 तो नहीं हो सकता. अगर ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब e की पावर 0 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 1 माइनस 1 ये 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती. दैट मीन्स ये तो 0 के बराबर नहीं होगी कभी. ठीक है, सो क्लियरली e की पावर अल्फा पाई माइनस e की पावर माइनस अल्फा पाई, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज व्हाट? C1 इज इक्वल टू 0. अब वो कहते हैं ना, हम तो डूबे ही हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम. तो ये C1 जब डूबेगा तो अपने साथ किसको डुबो लेगा? C2 को भी. C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो C2 इज इक्वल टू माइनस C1. अगर ये डूब गया तो उसको भी डुबा लेगा अपने साथ. सो दिस इंप्लाइज C2 इज आल्सो इक्वल टू 0. तो कुल मिला के यहाँ से भी कुछ नहीं बना, हम यहाँ से भी क्या मिला? ट्रिवियल सोल्यूशन. तो इसका मतलब हमें केस नंबर 3 के लिए जाना पड़ेगा. अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, हमें किसी केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर हमें वैसे भी हमें तीनों केसेस डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो इस केस में भी हमें क्या दिखा? देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या मिला हमें? y इज इक्वल टू सीधा 0, y is equal to 0 because both C1 and C2 are equal to 0. So what we can say here, this case also leads to what? Trivial solution. So let's see what the case number 3 has in store for us. लिख लिया आपने? ये क्या हो गया? ये कैसे? अभी तक ऐसे ही था. हाँ, अजय ये खुद ब खुद कैसे होगी? हाँ, डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा था. अच्छा, ओके, फाइन. लेट्स कम टू द केस नंबर 3. When lambda is greater than 0, in this case we write lambda is equal to alpha square. Obviously alpha is any non-zero real number. Therefore
first becomes d square y dx square plus alpha square y is equal to 0. Again auxiliary equation is फर्स्ट नहीं कहना चाहिए, auxiliary equation of this star. So m क्या हो जाएगा, I, this implies thus the general solution is क्या है बच्चे, C1 sin अल्फा x प्लस C2 cos अल्फा x. ठीक है, क्या होता है अगर हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा आता है तो उस केस में अगर ये आता है हमारे पास प्लस माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज e की पावर अल्फा x C1 साइन बीटा x प्लस C2 cos बीटा x. अब यहाँ पे अल्फा तो 0 है तो e की पावर 0x 1 हो जाएगा और C1 साइन बीटा x और बीटा क्या है यहाँ पे अल्फा का काम कर रहा है प्लस C2 cos बीटा x. कीजिए अप्लाई कंडीशंस एज y at 0 is equal to 0 and y at pi is equal to 0. This implies 0 is equal to, ये तो C1 into 0 0 ही हो जाएगा, so this is C2 into 1. लिख लो C1 into 0 plus C2 into 1. This implies C2 is also equal to, the C2 is equal to 0. Fine. और y at pi is equal to 0, that means this is equal to 0. अब साइन पाई क्या हो जाएगा, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर लैम्डा, तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा. ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिखो पहले इसको C1 साइन अंडर रूट लैम्डा x कितना है पाई और C2 तो 0 हो गया प्लस इसको 0 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 0. और यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिखा मैंने अंडर रूट लैम्डा बिकॉज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. तो इसका मतलब C1 इंटू साइन दिस इज इक्वल टू 0. ओके, अब तो हमारे पास दो कंडीशनें हैं, या तो C1 0 होगा या ये 0 होगा बिकॉज बोथ आर 0. बट अगर C1 0 हो गया इसका मतलब फिर से क्या आ जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, एक ना एक केस में तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए ना. सो दैट मीन्स फिर C1 जो है वो नॉन 0 रहेगा, तो किसको 0 होना पड़ेगा, साइन अंडर रूट लैम्डा पाई को 0 होना पड़ेगा. तो वहां से हमें कंडीशन मिलेगी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की. लिखो either we can set C1 equal to 0 or sine under root lambda pi equal to 0. However, if C1 is equal to 0, then again we have a, फिर से क्या मिलेगा
ये C2 तो पहले ही 0 हो गया. वी हैव ए ट्रिवियल सोल्यूशन, वी हैव ए ट्रिवियल सोल्यूशन. लेकिन पीछे हमने देख लिया वहां पे कहीं पे भी नॉन ट्रिवियल नहीं, इसका मतलब होगा तो यही होगा. Thus to attain non trivial solution we cannot set C1 equal to 0, but rather we set sin this equal to 0. Okay, फाइन. अब आपको याद होगा सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट if k is greater than 0 then sin k pi is equal to 0 if and only if k is a positive integer. k is a positive integer. जनरली हम जनरल जो पढ़ते हैं ना वो ये पढ़ते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई. लेकिन यहाँ पे पहले ही से क्या है k पाई, तो इसका मतलब सिर्फ n, सिर्फ क्या लिखना है n. अब वो n ऑलरेडी क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो जो इंटीजर है वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर. बेसिकली n पाई पे साइन 0 होता है, तो k पाई दिया हुआ है और k ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू n. दैट मीन्स दैट विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इनटू पाई जो है उस पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे ये किस पे 0 हो रहा है अंडर रूट लैम्डा पाई पे, तो इसका मतलब ये अंडर रूट लैम्डा किसके इक्वल होगा, दिस विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर. ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, because this also looks like sin k pi equal to 0, and we saw that if sin k pi is 0 if and only if this k is a positive integer, so therefore this root lambda has to be a positive integer. So by the theory of trigonometry or from trigonometric equations general solution, so sin is equal to 0 if and only if root lambda is equal to n, where n is what positive integer. तो if and only if lambda क्या हो जाएगा n स्क्वायर, lambda क्या हो जाएगा बच्चे n स्क्वायर. ओके, so what we can say, so therefore for non-trivial solution, for non-trivial solution in differential equation d square y by dx square plus lambda y equal to 0, lambda has to be n square, where n is 1 2 3 4 and so on. It is any natural number, it is any natural number, or you can call it positive integer. तो अगर आप चाहते हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या मिले नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, तो लैम्डा को आपको क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. दैट मीन्स यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. दैट मीन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 विल हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y equal to 0 will have a non-trivial solution. d square y by dx square plus 9y equal to 0 plus 16y equal to 0 plus 25y equal to 0. So all of them will have a non-trivial solution. So this is how we solve these SLPs. इनको SLPs भी कहते हैं शॉर्टकट में SLPs.
SLPs का मतलब स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम्स, स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम्स, सो दे आर स्टर्म लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसी के साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और आइगन फंक्शन, वो लिख लो। बेसिकली जिन लैम्डा की वैल्यूज के लिए हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है ना, वही लैम्डा की वैल्यू आपकी आइगन वैल्यूज होती हैं, और उसके कारस्पॉन्डिंग जो आपको फंक्शन मिलता है वही आपका आइगन फंक्शन होता है या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। हर वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू नहीं होती है, बट सिर्फ वो वाली लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू होती है जिसके कारस्पॉन्डिंग आपको लिखिए, कंसिडर ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू, फिर से हो गया, देखिए बच्चे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और आइगन फंक्शन, कंसिडर द SLP consisting of the differential equation d by dx plus and supplementary conditions a1 y1 a ya plus a2 y prime a equal to 0, b1 y at b plus b2 y prime at b equal to 0, the values of parameter lambda in this equation first, in equation first, for which there exists what, a non trivial solution, वो वाली वैल्यूज लैम्डा की जिसके लिए आपको क्या मिले, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन of the problem are called characteristic value of the problem, are called, उनको क्या कहते हैं हम, characteristic और आइगन वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। Good. The corresponding non-trivial solutions are called characteristic function of the problem. The corresponding
solutions are called characteristic functions of the problem. Example, lambda y equal to 0, y0 is equal to 0, y at y equal to 0. अभी जब जो हमने की, ठीक है, वी ऑब्जर्व्ड, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व्ड that values of lambda in star देखो, in star for which there exists non-trivial solution or the values lambda equal to n square, where n belongs to set of natural numbers. Okay, so lambda equal to 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and so on, they are called eigenvalues or characteristic values. And corresponding characteristic function and corresponding eigen or characteristic function is what? Y is equal to Cn शाबाश sin nx, sin nx. अब बोलोगे nx क्यों? क्योंकि वो था sin अंडर रूट लैम्डा एक्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू है n स्क्वायर, तो लैम्डा को n स्क्वायर पुट करो, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल. सो दिस विल बी Cn sin nx. ठीक है, वेयर Cn इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, Cn इज arbitrary constant. So this is what we call as eigenvalues and eigenfunctions. Tomorrow we will be doing orthogonality of characteristic functions. ठीक है, हम देखेंगे कि any two characteristic functions they are orthogonal to each other, and then we will move to the final topic of the unit, namely Green's function. So most probably tomorrow or the day after tomorrow we will be done with unit number 3. So that's it.